Assalamu alaikum everyone, welcome back in the Learning with Samina. So today we have a very important topic and I'm going to tell you about it in a very brief way, and that is importance of writing and importance of reading. Importance of reading is such an important topic. So let's start our episode number 4. सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, I know many people are gonna come here and say that okay, we can't read, it's not something easy. I totally understand that because the person who's sitting in front of you all is someone who hated reading, who was not fond of reading until now. I hated books because they made me sleepy. Whenever I opened them, I slept. I was never fond of books, as you can tell by my story. And what happened like 4 years ago when I started learning English, when I started teaching myself English, that time I bought books, and those were not ordinary books like the basic books of your school or college or university. Those were interesting books such as Alchemist, such as 40 Rules of Love. Next I'm gonna share with you is a very much important book of my life, and अगर मैं आपको उसका नाम बताऊंगी वो आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे कितनी छोटी सी है, it has repeatedly same thing again and again. And people who don't understand that are gonna say okay, this is such a normal book, इसमें कुछ special नहीं है. But for me there is. For people who are overthinkers like me, that book is everything, because that book not just taught me English, it taught me how to manifest good things, how to think positively, how thinking matters, कितना इम्पोर्टेंट होता है अच्छा सोचना. तो उस बुक ने मुझे ये बताया है, and I am gonna recommend to all the English learners and as well as the overthinker fellows, because I used to be one who was overthinking anything and everything, and it helped me so much. That book is everything. So read it for sure, and I'm gonna put it right here so आपके लिए easy हो to find it, and I'm gonna put every book here तो आपके लिए easy हो to find these here. I've been asked this question very commonly कि how we can improve the writing, how we can improve the reading, and I'm going to tell you now. तो सबसे पहले तो just forget about the boring books, forget about it, because I know they can make you very 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 sleepy. और आज मैं आपको कुछ general recommend करूँगी जो कि आप देख सकते हैं to improve the reading because they're going to be interesting. सबसे पहले तो I would definitely say the cartoon box. कार्टून से मेरा मतलब है द कॉमिक बुक्स. कॉमिक बुक्स वो होती हैं विच आर फिल्ड विद पिक्चर्स, ठीक है. हमारे यंगस्टर्स के लिए भी होती हैं, किड्स के लिए भी होती हैं, अडल्ट्स के लिए भी होती हैं, हु लाइक टू सी पिक्चर्स एंड कलर्स इन देयर बुक्स, ठीक है. जिस तरह आई वॉज वन ऑफ दोज किड्स, स्टिल आई एम दैट किड who wants to read a book जो कि कलरफुल हो. So I'm going to tell you there is nothing wrong with that. कुछ भी रॉन्ग नहीं है. You buy that book and you read it because वो बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. They are with very little sentences, with very short sentences, which are the best thing for new learners, for beginners. कॉमिक्स बुक्स आप या तो खुद की ले लें या किड्स की ले लें या यंगस्टर्स की ले लें, तो उसमें ये होगा कि आपको उतना ही इंटरेस्ट होगा टू रीड देम, to like just like a funny story, just a cartoon story, and there are interesting stories भी होती हैं, they're like filled with cartoons and colors, so everyone likes that, right? So you can definitely go get them and I'm going to recommend few of them. So अगर आप beginner हैं, अगर आप new हैं in English learning, so those are definitely the books you need to learn. अगर आपको reading अच्छी नहीं लगती है तो आप पहला step आपका definitely comic books होगा, because that's how you can like just not force yourself. आपको force नहीं करना पड़ेगा. It's not like a super lengthy book, it's just a very fun book and it's gonna just like encourage you to read more. So I definitely recommend you those. Moving on, we have love stories. ये उन लोगों के लिए है who are interested to read about the love story. जैसे हमारे पाकिस्तान में भी बहुत novels हैं, उर्दू में हैं और बहुत खूबसूरत नॉवल है. आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वो सालार वाला एक नॉवल था विच वॉज फेवरेट ऑफ एवरी वन. तो वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं, वो भी इंग्लिश में अवेलेबल है. दोज पीपल हु रीड लव स्टोरीज विल अग्री ऑन दिस दैट दे मेक यू हुक, they just like make you interested in the reading. You are interested that अच्छा उस लड़की के कैरेक्टर क्या है, उसकी अपीयरेंस क्या है, how does she looks, what is her hairstyle, how she looks, what is the shape of her face, how much is her height and all that stuff. तो आप उनके फीचर्स जानने की कोशिश करते हैं, तो you get interested in like
male character, female character, how they met and all that stuff. It just makes you very excited and interested in the whole story. So you read it. Just don't treat it like normal books. आप उनको पढ़ते हैं, you get interested, आप उनको साइड पे बेशक रख भी दे, but you remember, okay, you get furious कि what happens next. आप उनको दोबारा से निकालते हैं and you read them out और आप उनको finish भी करते हैं. So that is why I am recommending you love stories. नेक्स्ट वी हैव इज बायोग्राफी. और बायोग्राफी आई नो बहुत लोगों की बोरिंग भी हो जाती है, बट आप अपने इंटरेस्ट के लिहाज से सुने. कुछ लोगों को इंटरेस्ट है सेलिब्रिटीज़ में, कुछ को है पॉलिटिशियन में, कुछ को डिफरेंट पर्सनैलिटी में, जिनको आप आइडलाइज करते हैं. अगर नहीं भी करते हैं और अगर आप उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो आई वुड रिकमेंड बायोग्राफी ज़रूर पढ़ें. इसमें उनकी लाइफ स्टोरी एक शेयर्ड है. इट इज़ बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज, तो कुछ भी फिक्शन नहीं है. तो इट इज़ गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन कि वेयर दे वर बॉर्न, उनकी फैमिली कौन है, वो कहाँ से आए हैं, हाउ दे बिकम व्हाट दे वांटेड टू बिकम ऑलवेज, उन्होंने कैसे अपनी सक्सेस हासिल की, उनकी स्टोरी क्या है, what inspired them, how they kept themselves motivated, उन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया. When you read something वो आपको बहुत इंट्रीग्यूट करती हैं and you get interested, और वो आप रिलेट भी कर पाते हैं because they are real life stories and many of the dreamers would agree with that कि जितना आप दूसरों के struggles, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, it motivates you क्योंकि they have fought for their dreams, they have fought for their goals. हम क्यों नहीं कर सकते हैं? And you get interested और वो उस तरह पढ़ते पढ़ते आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही होती है. सो अगर एक चीज़ के साथ दो काम हो रहे हैं तो why not, right? Biography I would definitely recommend to those people who are interested in that. हर एक को नहीं कह रही, those people who know they will not get bored और उनको अच्छा लगेगा और वो सीख भी लेंगे, तो I would definitely recommend to those people. ठीक है. Moving on we have mystery novels. आजकल आप काफ़ी सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि वहाँ पे मूवीज़ होती हैं, शॉर्ट क्लिप्स होते हैं related to the mysteries कि उस ज़माने में ये हुआ, that person and that father abandoned her daughter, did that or did this. तो उसमें ये क्या होता है कि मैंने हमेशा नोटिस किया है कि उन चीज़ों के व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, कमेंट्स होते हैं, तो पीपल डू गेट फ्यूरियस अबाउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, उनके साथ क्या हुआ. इट्स अ मिस्ट्री, सस्पेंस होता है, तो वो उस चीज़ को ज़रूर देखते हैं चाहे उनका जितना टाइम ज़ाया हो रहा हो. इस तरह ये है कि अगर आप बुक पढ़े हो, इट इज़ रिलेटेड टू मिस्ट्री, तो आपको हमेशा होता है सस्पेंस क्रिएट होता है एंड यू हैपन टू फिनिश इट. दोज पीपल हु कंप्लेन अबाउट कि वो एक बुक को ख़त्म नहीं कर पाते, आई वुड रिकमेंड यू अ मिस्ट्री बुक बिकॉज अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको उतना ही सस्पेंस होगा, तो आप उसको ख़त्म करके ही रहेंगे. बेशक आप शुरू 2 पेजेस से लें, 4 पे लें, और बेशक आप दिन ढेर सारे डाल, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप उसको फिनिश ज़रूर करेंगे. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड मिस्ट्री बुक्स टू यू गाइस. And I would put few option here जो mystery books हैं, and trust me it's gonna change the game. The last one I'm gonna recommend you, they are not mystery, they are not love stories, they are not comics, they are not biography, कुछ उन strange जैसा नहीं है. They're just like simple film story होती है ना, just a story of few people, fiction stories, fake stories जो बनावटी होती हैं, which you also make up in your mind, right? Few की example मैं आपको दूंगी, जैसे कि Alchemist, one of my favorite, Harry Potter, वन ऑफ माई फेवरेट. आपने फिल्म देखी हुई है, आप बुक भी पढ़ सकते हैं. उसकी 7 बुक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. देन देयर इज ट्वाइलाइट, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, और भी बहुत मजे किए हैं, एंड आई एम गोना रिकमेंड यू हियर. तो बहुत अच्छी हैं, डोंट फॉरगेट टू रीड देम. अगर आप इन 4 जेनर में से नहीं पढ़ सकते तो दिस इज अ वेरी गुड वन. बहुत लाइट हार्टेड है, यू कैन गेट द बुक ऑफ योर चॉइस, जो आपको सूट करता है. हॉरर होगी, लाइट हार्टेड होगी, सिंपल फिक्शन होगी, लिटिल लव स्टोरी होगी, जस्ट अ लिटिल रैंडम स्टोरी होगी एक लड़के की. दो स्टोरीज विल हुक यू. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड fiction story to those people who don't want to watch or read these things. Okay. Personally जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, I have told you, मैंने अल्केमिस्ट और भी बहुत सी बुक्स हैं. कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो बहुत मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड. वो आपको अमीर बनना नहीं सिखाते हैं, सो रिमेंबर दैट. आपको ये नहीं बताते कि अमीर कैसे होना है, बट दे टीच यू अ ग्रेट लेसन. तो वैसी बुक्स पढ़ना और ऐसी सारी बुक्स पढ़ने से आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो ट्रस्ट मी वो झूठ होगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आएगा, लाजमी आएगा. इससे आपकी रीडिंग स्किल बेहतर होगी, और जिस तरह की रीडिंग स्किल बेहतर होती है, मैंने आपको पहले भी कहा है, लर्निंग इंग्लिश इज़ मोर ईजियर लाइक दैट. यू लर्न इंग्लिश, आप सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन की स्किल आपको आती है. और मैं आपको एक और टिप दूंगी कि जब भी आप ये बुक्स पढ़ें, सो मेक श्योर करें आप लाउडर पढ़ें, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, आपको सुनाई दे रहा हो. क्योंकि जितना आपको सुनाई देगा ना, उतना आपको पता चलेगा कौन सी आपने गलती की है.
ठीक है, उतना आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ फंबल किए हैं, और हर कोई फंबल करता है, इट्स टोटली नॉर्मल, बट यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। तो आपको पता होगा कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, कौन सा आपकी पंक्चुएशन गलत है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। और वहीं पे एक और चीज़ कि जब भी आप कोई बुक पढ़ें, हाईलाइटर ले लिया करें, उनको हाईलाइट कर दिया करें, जो जो आपको वर्ड्स न्यू हों, जो आपके लिए मुश्किल हों, जो आपके लिए यूनिक हो, तो उनको हाईलाइट करके बेशक दूसरी बुक पे या तो नोट डाउन कर लें, या वहीं पे हाईलाइट करके कार्बन पेंसिल से वहाँ पे मीनिंग लिख लें। यहाँ पे मीनिंग ना भी लिखें, बिकॉज आप दोबारा उस बुक को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोबारा उस चीज़ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार तो आपने गलतियाँ की, आप उनसे सीखेंगे, दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने दूध में हैं और कितने पानी में हैं, तो आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, और आपको पता चलेगा आपने कितना इम्प्रूव कर लिया है लास्ट टाइम से, क्योंकि आप एक दफ़ा सारी बुक पढ़ ली, उसके वर्ड्स देख लिए, उनके मीनिंग्स देख लिए, नोट डाउन कर लिए, रिमेंबर कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, अब दोबारा से वो बुक पढ़ें। On this note, I will end my video, and it was a very helpful one. और मैं आपको और भी books recommend करूँगी in my description right below. They're going to be very helpful for you. I hope you learned something. Stay tuned for more such videos. Allah Hafiz.